Hello viewers, today I am going to tell you about the Python if and else statements. Python conditions and if statement. Python support the usual logic conditions from mathematics. That is equal, A equals to B, not equal, A not B equals to B, less than A not less than B, less than or equal to A less than or equal to B, greater than A greater than B, greater than or equal to A greater than equal to B. These conditions can be used in several ways. Most commonly, if in a statement and loop. An if statement is written by using the if keyword, so we can write if statement B is greater than A. Here I am checking if B is greater than A, then print B is greater than. So in this example, we use two variables A and B. So how it will perform, just see. Here I have taken the A equals to 33 and B equals to 200. In this example, we use two variables A and B which are used as a part of if statement to test whether B is greater than or A or not. As A is 33, B is 200, we know that 200 is greater than 33. And so we print to screen the B is greater than A. For that, we need indentation. Python relies on indentation, white space at the beginning of the line to define the scope in the code. Other programming languages often use curly bracket for this purpose. If a statement without indentation will raise an error. अगर हम if condition लिखते तो next print condition के पहले हमको स्पेस देनी पड़ेगी, अदरवाइज एरर ले लेगा, और स्पेस देंगे तो वो प्रिंट कर देगा इफ बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि हम लोग ने लिखा है कि b is greater than a. Here we have written if b is greater than a, the print b is greater than a. अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो एरर देगा. प्रिंट एल्स इफ. अब अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, तो उसको हम एल्स इफ कहते हैं. EL मतलब एल्स इफ. The else if keyword is in Python way of saying if the previous condition is not true, then you must check the another condition. For that, here A is 33, B is 33, B is greater than A, and B is greater than A, no. Else if A is equals to B, तो print करेगा A and B are equal. How it will do? Let's see. If a statement without indentation will raise error, हमने बताया. The else if keyword is a Python way of saying if the previous condition were not true, then try this condition. A and B are equal. हम लोग ने A भी 33 लिया था और B भी 33 लिया, तो else if पे क्या होगा? B A equals to B. फर्स्ट कंडीशन नहीं ट्रू होगी तो सेकेंड पे आ जाएगा और वहां पर प्रिंट कर देगा A is equal to B. अब क्या कंडीशन है? अगर एल्स इफ भी सही नहीं होती है तो एल्स पे आएगा. ठीक है. अगर एल्स इफ भी, अगर सेकेंड कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है तो थर्ड कंडीशन पे आएगा. थर्ड कंडीशन इज एल्स. सो हाउ इट विल डू? Just see. A is greater than B. अगर
एल्स पे आता है तो क्या प्रिंट करेगा, ए बी इज ग्रेटर देन ए, पहला कंडीशन। अगर नहीं है तो ए और बी बराबर है, नहीं है तो तीसरी कंडीशन पे आएगा, वहां पे ए इज ग्रेटर देन बी। In this example, A is greater than B, so the first condition is not true. Also, the else if condition is not true, so we go to the else condition and print to the screen that A is greater than B. क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने A 200 लिया, B 33 लिया, so A is greater than B. If you can also use else without else if. अब ऐसा भी हो सकता है कि हम सीधे इफ के बाद एल्स यूज कर ले। इफ बी इज ग्रेटर देन ए, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए, एल्स प्रिंट बी इज नॉट ग्रेटर देन ए। अब यहाँ पर बी 33 है तो क्या प्रिंट करेगा, बी इज नॉट ग्रेटर देन ए। अब इसी को हम शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट हैंड मतलब कि एक ही लाइन में सब कुछ लिख दें। इफ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, यू कैन पुट इट ऑन द सेम लाइन। प्रिंट स्टेटमेंट को सेम लाइन में लिख सकते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए यहाँ पे बड़ा है बी से, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, डायरेक्ट वहीं पे हम लिख सकते हैं। शॉर्ट हैंड इफ एल्स, इफ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, वन फॉर इफ एंड वन फॉर एल्स, वन लाइन में इफ एल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स प्रिंट बी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर प्रिंट ए सबसे आगे लिखेंगे, तो लिखेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स प्रिंट बी। अगर ए बड़ा नहीं है वो प्रिंट नहीं होगा और एल्स पे जाकर प्रिंट बी कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ए 2 है। अब इन दोनों कंडीशंस को हम लोग देखते हैं कि कैसे वो कर रहा है। पहले में है A 200 और B 33, तो क्या प्रिंट करेगा, B इज नॉट ग्रेटर देन A। और इस वाले में क्या करेगा, B इज ग्रेटर देन A। सो रन करो, यहाँ पे 330 प्रिंट करेगा, वहां पर B इज नॉट ग्रेटर देन A करेगा। ये शॉर्ट हैंड इफ एल्स है ना। इफ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, वन फॉर इफ एंड वन फॉर एल्स, यू कैन पुट इट ऑल ऑन द सेम लाइन। यहाँ पे देखो वन लाइन इफ स्टेटमेंट में बी प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और वन लाइन इफ स्टेटमेंट जो हम लोग ने लिया था शॉर्ट हैंड, इफ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, यू कैन पुट इट ऑन द सेम लाइन, लिया था ना। कैसे लिया था देख लो, ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट कर रहा है ये ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। और यहाँ पर बी इज नॉट ग्रेटर देन ए है, तो इसको कैसे किया उसने देख लो, बी इज नॉट ग्रेटर देन ए। यू कैन ऑल्सो हैव एन एल्स विदाउट इफ। एल्स इफ हमेशा जरूरी नहीं है, नेस्टेड इफ में एल्स इफ जरूरत पड़ेगी, है ना। एल्स इफ हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है, जब हमारी कंडीशन कई होगी तब एल्स इफ की जरूरत पड़ेगी। बी इज नॉट ग्रेटर देन ए। और शॉर्ट हैंड में क्या करेगा, डायरेक्ट प्रिंट कर देगा ए इज ग्रेटर देन बी या बी। तो कंडीशन लिखने का तरीका आना चाहिए, उसके बाद तो हो ही जाएगा। यहाँ पे बी ए बड़ा है बी छोटा है, तो बी ग्रेटर देन ए ना प्रिंट करके क्या करेगा, बी इज नॉट ग्रेटर देन ए। शॉर्ट हैंड में क्या करेगा, ए इज ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट करेगा ए इज ग्रेटर देन बी, बिकॉज ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे ए छोटा है और बी बड़ा है, तो क्या करेगा, प्रिंट ए। अगर ए बड़ा होता तो प्रिंट ए हो जाता, नहीं तो प्रिंट बी हुआ। अब आगे चलते हैं। दिस टेक्निक इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। जब दो प्रिंट आउट एक कंडीशन के साथ यूज होती है तो इसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं और कंडीशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। यू कैन ऑल्सो हैव अ मल्टीपल एल्स स्टेटमेंट ऑन द सेम लाइन। अब उसी तरह से
कई एल्स भी हम यूज कर सकते हैं एक ही लाइन में. वन लाइन इफ एल्स स्टेटमेंट विथ थ्री कंडीशंस. Here A is 330, B is 330. Here print A if A is greater than B, else print equal if A is equal to B, else print B. अब तीन कंडीशन चेक हुई. पहले में कहा A ग्रेटर देन B हो तो A प्रिंट कर दे. अगर else print equal if A is equal to B. अगर A equal के B है तो equal प्रिंट कर दे, नहीं तो B प्रिंट कर दे. प्रिंट एंड. अब इसके साथ एंड कंडीशन भी लग सकती है. एंड में क्या होगा, दो कंडीशन जब चेक करनी होती तो हम एंड यूज करते हैं. द कीवर्ड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज टू कंबाइन कंडीशन. टेस्ट इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन ए तो प्रिंट सी कर देगा. यहाँ इफ ए इज ग्रेटर देन बी है एंड सी इज ग्रेटर देन ए है तो बोथ कंडीशन आर ट्रू, है ना. तो क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा क्या बड़ा है, सी. प्रिंट कर देगा सी. ठीक, मतलब सी सबसे बड़ा है. और कंडीशन में क्या करेगा, ए इज ग्रेटर देन बी, यस, और ए इज ग्रेटर देन सी, फॉल्स. लेकिन ए इज ग्रेटर देन बी ट्रू हो गई. एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू. और के केस में एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. ठीक, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, ए प्रिंट कर देगा. ए इज ग्रेटर देन बी, बी ट्रू है तो ए प्रिंट कर देगा. ठीक है. अब आया, इसको रन करते हैं यहां से नेस्टेड इफ करने से पहले. रन. लेट्स सी. दिस टेक्निक इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर. यहां तक किया था. और कंडीशनल एक्सप्रेशन. यू कैन ऑल्सो हैव अ मल्टीपल एल्स स्टेटमेंट ऑन द सेम लाइन. वन लाइन इफ एल्स स्टेटमेंट विथ थ्री कंडीशन. अब हम लोग ने दो ए और बी बराबर लिया था तो यहाँ पे उसने इक्वल प्रिंट कर दिया. एंड केस में क्या किया था, दोनों कंडीशन ट्रू थी इसलिए सी प्रिंट कर दिया. बोथ कंडीशन आर ट्रू. सी सबसे बड़ा था इसलिए सी प्रिंट कर दिया. और कंडीशन में दे आर, और कीवर्ड इज लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट दैट इफ A is greater than B or if A is greater than C, at least one of the condition is true, है ना. कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर A is greater than B ट्रू हो रही है. तो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट A is greater than B, है ना. प्रिंट ए. ठीक है. अब आया नेक्स्ट नेस्टेड इफ. नेस्टेड मतलब कंडीशन के अंडर कंडीशन, है ना. एक कंडीशन तो जैसे भी यहाँ पे चेक करना है हमको, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी, तो एंड ए इज ग्रेटर देन सी, है ना. एल्स बी इज ग्रेटर देन सी. कई कंडीशन हो गई. यहाँ पे देखो एग्जाम्पल जो दिया है. You can have if statement inside if statement. This is called nested if. X is equal to 41. If X is greater than 10, above 10. If X is greater than 20, also above 20. Else print but not above 20. लेकिन अगर नहीं है तो above 20 नहीं प्रिंट करेगा. यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, and also above 20. Above 10 and also above 20. ये करेगा. The pass statement. If the statement cannot be empty, but if you for some reason have to pass this condition if statement, then you write pass, है ना. अगर कुछ भी खाली कंडीशन या अगर हम कोई कंडीशन में कुछ भी प्रिंट नहीं करना चाहते हो, कंडीशन लगी है तो वहां पे हम पास लिखेंगे. ठीक है. तो अब इसको रन करके देखें. ये देखिए, above 10 and also above 20 हमने बताया था ना.
नेस्टेड इफ में दोनों में क्या करेगा, above 10 and also above 20. The pass statement, if a statement cannot be empty, but if you for some reason have an if statement with no content, put in the pass statement to avoid getting an error. कोई एरर ना मिले इसलिए हम वहां पे पास लिखते हैं. तो इस तरह से आज का खत्म हुआ और जितने कंडीशन है वो सब हम लोग ने पढ़ ली. और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू व्यूअर्स.